Hey guys, and we meet again, and सेम चीज़ करंट अफेयर्स पिछले एक हफ्ते के और बेसिस वही है जो पिछली बार डिस्कस किया था कि सब कुछ करने के बाद सारे टॉपिक्स एवेलुएट करने के बाद कि आपको क्या बताना है, आपको क्या पढ़ाना है। दो चीज़ें मैंने पूरी तरह इग्नोर मारी हैं, पहला कोविड और दूसरा पॉलिटिकल न्यूज़। ये दोनों चीज़ें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है एकदम। सारे न्यूज़ चैनल जब भी चलाओ एक ही टॉपिक, यही दोनों टॉपिक डिस्कस हो रहे होते हैं। सो आई हैव गॉटन सो बोर्ड एंड इरिटेटेड विद दीज टॉपिक्स कि कुछ ऐसा ढूंढना बहुत जरूरी है जिसका एंट्रेंस पे अच्छा इम्प्लीकेशन हो, राइट। टॉपिक्स ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने जो कि एंट्रेंस में आ सके, ना कि कोविड और रेगुलर द पॉलिटिकल ड्रामा दैट वी गेट टू वॉच ऑन न्यूज। तो उन दोनों को अवॉइड करते हुए I have again curated the top topics that have happened in the last week and back here, and also hoping कि आप सब लोग safe हैं, आपकी family में सारे लोग safe हैं, and बोर्ड की न्यूज़ तो आई गई है, so I hope that isn't causing too much of stress to you, and now it is purely about focusing on the entrance exams. तो चलिए, without wasting any time, let's jump straight into the topics. So the first one that I have to share with you is that we now have a new CBI director. February से पोस्ट खाली थी, and when the last डायरेक्टर ऑफ CBI मूव्ड आउट, ही रिटायर्ड, उनका 2 साल का टेन्योर पूरा हो गया था। दीज आर टाइम बाउंड पोजीशंस कि एक फिक्स टाइम के बाद बंदे को जाना ही होता है, बिकॉज दीज रिलेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टफ, तो वो टाइम बाउंड होते हैं। सो मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल, हु इज अ 1985 बैच IAS ऑफिसर, ही हैज टेकन ओवर द पोजीशन एज द न्यू Director of Central Bureau of Investigation (CBI). Prior to this, he was the Director General of CISF, which is Central Industrial Security Force. Right? So these are key terms, terminologies, abbreviations जो आपको पता होनी चाहिए. What is the full form of CISF? What is the full form of CBI? And who is the Director of CBI? Because it is an important position. Prior to this, prior to becoming the director of CBI, he also has been involved in some very high profile cases like the Telgi stamp paper scam, जिसमें पूरा इंडिया का जो स्टैम्प पेपर, जो हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं ऑन स्टैम्प पेपर, उसी का एक पूरा स्कैम था कि कैसे फेक स्टैम्प पेपर प्रिंट होते थे। सो दैट स्कैम वाज नोन बाय तेलगी, अब्दुल करीम तेलगी, and he did this and was known as the Telgi scam. So he has been involved in solving that case as well, right? So this is the first one. Next, what happened in the last week? So the second one was, typically ये बहुत ही रेयर सिनेरियो है कि आपकी कंट्री के ऊपर से कोई प्लेन, किसी और कंट्री का प्लेन उड़ रहा है और आप फोर्सिबली एयरफोर्स के जेट्स भेज के, यू सेंड एयरफोर्स जेट्स एंड यू फोर्स द प्लेन टू लैंड. दिस इज अ वेरी वेरी रेयर सिचुएशन, हैपन्स or is restricted only to those scenarios when there is either hijacking or there is some instance of threat to the country ki, you know, it could be the plane could be used as a missile against your country, and then you ramble your air force jets कि उसको फोर्स करो, फोर्स करके लैंड करो उसको, या वो प्लेन हाईजैक हो चुका है तो उसको उतारो, लोगों को बचाना है. अदरवाइज इस सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को यूज नहीं किया जाता कभी. बट व्हाट बेलारूस रिसेंटली डिड, there was a Ryanair jet, Ryanair plane which was flying above Belarus. It scrambled its fighter jet and it forced the Ryanair plane to land within Belarus. And then on the plane there was a journalist जिसको कि arrest कर लिया गया. Sorry, there was a pigeon. So now the question is, can you really do something like this? No, you cannot. And as a result, यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पे काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्ट. And who ordered the fighter jet to take off and forcefully land this plane? It was the president of the country, President Alexander Lukashenko. तो अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो from past some time, तो ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में आ रही थी. There is a lot of unrest in the country. People are voicing their opinion against President Lukashenko and saying कि he is almost turned into a dictator. Now it's high time he has to leave. तो पहले ही सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी फॉर द प्रेसिडेंट एंड हिज रूल, एंड नाउ विद दिस एक्ट ऑफ हिज, people have gotten even more opposed to Belarus, though he might find ally in form of Russia, but typically the rest of European Union has suddenly gotten very against Belarus, और उन्होंने बोला है कि हम बेलारूस के एयर स्पेस को ब्लॉक कर देंगे, ना ही किसी बेलारूस के प्लेन को हमारी कंट्री के ऊपर से उड़ने देंगे. सो दैट्स अ मैसिव सैंक्शन, राइट. चले
आगे चलते हैं। ये भी एक बहुत ही फनी न्यूज़ है। पता नहीं क्या सरकार को क्या बीती, सरकार पे क्या बीती कि उन्होंने बोला चलो हम लक्षद्वीप के पॉलिसीज चेंज करते हैं। तो लाइक इन न्यू दिल्ली, द स्टेट ऑफ दिल्ली हैज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु वाज एवेंचुअली डिक्लेयर्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो इसी तरह से लक्षद्वीप में सेंटर अपॉइंटेड एन एडमिनिस्ट्रेटर whose name is प्रफुल्ल कुमार पटेल, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, सॉरी, वो तो एविएशन मिनिस्टर थे, प्रफुल्ल कुमार पटेल, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, who has been appointed as the special administrator of Lakshadweep, and he came up with very weird policies for this island. It's a group of islands, a small group of islands. There are 36 islands, of which 10 of them are uninhabited, जिसमें लोग नहीं रहते. So सिर्फ 26 छोटे छोटे islands में लोग रहते हैं. And Karavati is the capital of Lakshadweep. और कुछ मतलब देर इज वेरी लो crime rate, almost negligible crime rate there. There was no reported case of COVID prior to the laws being changed by the appointed administrator. The island doesn't have enough population to really need massive improvement in road, and definitely doesn't need railways. अब प्लान कुछ ऐसा बना दैट दिस न्यू एडमिनिस्ट्रेटर केम एंड सेड कि हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है, हमें आइलैंड को डेवलप करने की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, डेवलपमेंट नहीं है तो रोड्स बनाने हैं, रेलवेज बनाने हैं. आइलैंड के जो नेटिव लोग हैं वो कह रहे हैं इतनी चौड़ी सड़कें बना के करोगे क्या, ना यहाँ पे गाड़ियाँ ना लोग हैं, तो इन सड़कों का होगा क्या. आप सड़कें बनाने के लिए पेड़ काट दोगे, जंगल काट दोगे, उससे क्या बेनिफिट होगा, आइलैंड की इकोसिस्टम को आप खराब कर दोगे. आप रेलवेज लेके ही कहाँ जाओगे, आइलैंड इतनी दूर दूर है, एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड के समुद्र के ऊपर आप ट्रेन दौड़ाओगे, वी डोंट नीड इट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो उनके फूड हैबिट्स हैं, जो उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, it was a community which used to consume beef, irrespective. Let's not get into who eats what, but जाके आप उनके फूड आइटम्स पे बैन लगा दिया, लिकर पे बैन लगा दिया, बट लिकर विजिटर्स के लिए लिकर अलाउड है. सो द क्वेश्चन नाउ इज व्हाई आर यू डूइंग दिस. आप सडनली बाहर से आए और आपने हमारे सारे जो भी लिविंग स्टाइल था हमारा वो सब चेंज कर दिया. एंड ऑल्सो पीपल कैन बी अरेस्टेड एंड डिटेन्ड विदाउट अ वारंट अगर आपको लगता है कि दैट पर्सन विल बी इन्वॉल्व इन एनी एंटी सोशल एक्टिविटी. बट citizens of that island are saying that यहाँ पे तो residents of the island, sorry, they are saying कि यहाँ पे तो कोई क्राइम रेट ही नहीं है, तो एंटी सोशल आप किसको डिक्लेयर करना चाहते हो, कैसे डिक्लेयर करना चाहते हो. सो देर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू दिस एडमिनिस्ट्रेटर एंड द रेसिडेंट्स ऑफ द आइलैंड आर वेरी वेरी स्ट्रांगली वॉइसिंग देयर ओपिनियन, टेलिंग द गवर्नमेंट प्लीज टेक हिम अवे, वी डोंट नीड हिम, हु हैव यू सेंट हियर. सो दिस इज व्हाट हैज स्टार्टेड हैपनिंग इन लक्षद्वीप. एंड वेरी रॉन्ग थिंग टू, राइट. आप सडनली किसी कहीं पे भी जाके जो भी लोगों का जीने का लाइफस्टाइल है, आप सडनली उसको चेंज कर दो और बोलो कि अब से कल से तुम नए तरीके से जियोगे. सो दिस इजंट वर्किंग आउट विद द पीपल ऑफ लक्षद्वीप. बट दे आर नॉट सेइंग दैट दे हैव एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया, दे आर ओनली अपोज्ड टू द पर्सन हु द सेंटर हैज सेंट देयर टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ दैट आइलैंड ग्रुप विच इज अ यूनियन टेरिटरी. ऑल राइटी, द नेक्स्ट न्यूज़ इज, आई एम श्योर ये तो आप सबने न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा. आई एम ऑल्सो होपिंग कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो. मैंने आपको बार बार बोला एटलीस्ट 30 मिनट्स तो डिवोट करो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, और दिन में न्यूज़ देखो थोड़ी देर न्यूज़ चैनल चला के, बट अच्छी वाली न्यूज़. जस्ट गेट रिड ऑफ, डोंट बॉगल योर हेड विद द न्यूज़ ऑफ कोविड या गवर्नमेंट की जो हमारी फालतू की पॉलिटिकल न्यूज़ आती रहती है. सो वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल दैट came in the last week of May was कि सेंटर फोर्स कर रहा है, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स कर रही है हमारे गवर्नमेंट सोशल मीडिया कंपनीज को कि आप अपने डेटा को रिवील करो एंड गिव अस मोर कंट्रोल, ताकि अगर हमें कोई कंटेंट पसंद नहीं है तो हम उसको डिलीट करवा सकें. which obviously these companies have repeatedly gone back and said ki no, this is not right. Up, you're suppressing people's right to speech, and court also is taking note of it on and off. And also there's so the push is more towards government trying to, or center trying to control what content is going online, right? Where the government calls it that any anti-social content should not, anti-country content should not go online, and these companies are saying, social media companies are saying that it need not necessarily be anti-government or anti-country. They are simply people's opinions and don't try to control it. So that's the tussle between both the entities. And with this, WhatsApp ने वापस सेंट्रल गवर्नमेंट पे केस कर दिया in the court saying
that the internet intermediaries rule, that is what the rule is called, which the government has come up with. WhatsApp told the court that center wants it to track every the origin of every WhatsApp मैसेज की मैसेज पहला किसने भेजा, किसके पास से कहाँ गया, उसके पास से कहाँ गया, तो कैसे फॉरवर्ड का ट्रेल ऑफ फॉरवर्ड्स क्या था, किसने उस मैसेज को पहली बारी बनाया. अगर आप WhatsApp यूज़ करते हो तो आप उसमें देखते हो आपका एनक्रिप्शन आईडी चेंज होता रहता है एंड इट ऑलवेज सेज दैट योर WhatsApp मैसेजेस आर एनक्रिप्टेड. तो आपकी काफ़ी सारी प्रिवेसी होल्ड हो जाती है आपके डिवाइस पे ही, उसके आगे वो जाती ही नहीं है. खाली मैसेज जाता है किसने भेजा, कब भेजा, क्यों भेजा, वो सारी चीज़ें WhatsApp नहीं ट्रेस करता आपके लिए और होल्ड कर देता है, राइट. तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, हमें पूरा बताओ कि शुरुआत कहाँ से हुई और किस किस ने देखा, क्यों देखा, कब किसने किसको फॉरवर्ड किया. तो WhatsApp ने बोला कि इससे आप लोगों की प्राइवेसी ज़्यादा इन्फ्रिंज कर रहे हो, आप कुछ बेटर नहीं कर रहे. सो WhatsApp हैज़ गॉन टू कोर्ट एंड टोल्ड कोर्ट कि see what the India government is doing is only infringing into people's privacy because government wants to snoop into who is sending what. So it's a question now, it's for the court to decide, is it really snooping or is it a matter of national security. But that's what the news is. Okay, एक अच्छी ruling आई in the last week and that was so see how who is considered a child and who is considered a family member in India. Anybody who is naturally born in the family is a child of the family, right? But if somebody goes and legally adopts a child and India में एक ही एजेंसी है कारा करके, तो अगर कारा के थ्रू कोई किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करता है इन द फैमिली, दैट चाइल्ड इज कंसिडर्ड, एब्सोल्युटली कंसिडर्ड अ मेंबर ऑफ द फैमिली. तो किसी भी चाइल्ड को जो नेचुरल राइट्स मिलते हैं फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स, किसी अडॉप्टेड चाइल्ड को भी सेम ही सारे राइट्स मिलते हैं. राइट टू इनहेरिटेंस, राइट टू बीइंग अ मेंबर ऑफ द फैमिली एंड ऑल द इंश्योरेंस, ऑल द हेल्थ एंड सेफ्टी एडवांटेजेस विच आर अवेलेबल टू द फैमिली मेंबर्स, वो सारी चीज़ें. तो रेलवेज ने क्या बोला था, रेलवेज हैड केम अप विद गाइडेंस, हाउ डू यू पुट इट, दे केम अप विद अ रूलिंग 20 years बैक कि अगर कोई रेलवे का एम्प्लॉय किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो ओनली द फर्स्ट अडॉप्टेड चाइल्ड विल गेट द बेनिफिट्स. Thereafter, no other child is eligible for the benefits of railways, which a natural child of a railway employee will get. And this was contested by a senior railways employee from Bangalore. He said he came to know that when he wanted some health benefits for his second adopted child, railway said no, you are not entitled to. This led to a litigation and Kara also got involved because Kara ensures the right of every single child who is adopted in this country कि उस child को, उस बच्चे को अपने पूरे rights मिलें, the rights equal to a naturally born child. So they gotten involved and finally railways had to change its ruling. So now any and every adopted child by any employee of railways in the country will get full medical benefits that are available to the other family members of railway employees. So this is a very good move that has come into place and 25th of May से ये ruling में convert हो गया है. So some good things happened. And Olympics, हमने पिछले वीडियो में बात की थी अबाउट ओलंपिक्स. टोक्यो ने, गवर्नमेंट ऑफ जापान ने बोला है कुछ हो जाए ओलंपिक्स होके ही रहेंगे, और हाँ ओलंपिक्स हो रहे हैं. इंडिया अपना कंटिंजेंट भेज रही है. इंडिया का कंटिंजेंट लगभग 120 से 150 के बीच में इंडिया का कंटिंजेंट साइज होगा और ऑफिशियल्स मिला के 200 के आसपास का कंटिंजेंट होगा. ऑल्सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज, आपको पता ही है कि इंडिया से फ्लाइट्स मैक्सिमम कंट्रीज़ ने बंद कर रखी हैं, तो आप इंडिया से किसी भी कंट्री में फ्लाई नहीं कर सकते इस टाइम. बहुत ही गिनी चुनी कंट्रीज़ ले रही हैं और वो भी स्पेशल कंडीशंस पे आपको आने दे रही हैं अपने पास बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन इन इंडिया. सो मैक्सिमम एथलीट्स हैव ऑलरेडी फ्लोन आउट ऑफ द कंट्री. वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके रहने लगे हैं, ट्रेन होने लगे हैं, सो दैट इट कैन बी एंश्योर्ड दैट उन्हें टोक्यो फ्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो. ऑल्सो देयर वॉज एन इशू, इफ़ यू गाइज हैव बीन फॉलोइंग, कि स्पुतनिक और कोवैक्सिन, दूसरी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट इनको लेजिटिमेट वैक्सीन नहीं मान रही.
दे आर सेइंग, और इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबल है उनमें से खाली कोविशील्ड ही एक वैक्सीन है जिसको लगा के आपको ट्रैवल करना अलाउड है, जिसको WHO ने अप्रूव्ड वैक्सीन माना हुआ है एज पर WHO गाइडलाइंस. सो एंड इट जस्ट इजंट अप टू WHO अगर बोल दे कि स्पुतनिक और कोवैक्सिन भी लेजिट वैक्सीन हैं, लेजिटिमेट वैक्सीन है, दूसरी कंट्री को उसे एक्नॉलेज करना चाहिए, नहीं तो उसके बिना वो नहीं घुसने देंगे. तो अभी तक काफी मैक्सिमम कंट्रीज ने सिर्फ कोविशील्ड को ही माना हुआ है एज ए लेजिटिमेट वैक्सीन which is available in India, one of the legitimate vaccines which is available in India. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे एथलीट्स को कोविशील्ड लगाया हुआ है एंड जस्ट टू इंश्योर कि जब तक उनका दूसरा डोज, दूसरे वैक्सीन का डोज का टाइम आए तो दूसरी कंट्रीज में भी इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि कोवैक्सीन यू वेरी वेल नो कि इंडिया में ही अवेलेबिलिटी उसकी मुश्किल हो रही है, तो दूसरी कंट्रीज में तो उसे भेजना इम्पॉसिबल है, और स्पुतनिक को दूसरी कंट्रीज मान भी नहीं रही. तो इसलिए सब सारे एथलीट्स को कोविशील्ड लग रहा है, सारे ऑफिशियल्स को कोविशील्ड लग रहा है, सो दैट दे कैन वेरी इजीली एंड कन्वीनियंटली ट्रैवल फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स. एंड सिर्फ वैक्सीन लगने से ही नहीं होगा, एक दिक्कत ये भी है कि वो वैक्सीन शुड ऑल्सो बी अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा. So another abbreviation which you guys must be aware of, WADA, World Anti-Doping Agency. So because every athlete has to really undergo the anti-doping test as per, right, and they have to, athletes need to submit samples. फिर random testing भी होती है कि कोई drug abuse नहीं कर रहा during for these sporting events. तो at least the known effects on the body and the known residue in the blood would be known from use of a certain vaccine. So कोविशील्ड के वो पैरामीटर्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं बाय वाडा, तो कोई भी एथलीट कोविशील्ड लेके जा सकता है और उसे एंटी डोपिंग एजेंसी ये नहीं बोलेगी कि आपने कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग ले रखा है फॉर द स्पोर्ट, राइट. सो दिस इज द अपडेट ऑन इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक्स एज ऑफ नाउ. देखना है एक्चुअल में आउटकम क्या है, बिकॉज जापान इज ऑल्सो फेसिंग द कोविड पैंडेमिक नाउ, सो वी इट्स स्टिल अ वेट एंड वॉच, बट जापान इज सेइंग कि होके ही रहेगा ओलंपिक्स. तो ऑल द बेस्ट टू इंडियन कंटिजेंट. एंड बिग न्यूज, Amazon प्राइम, तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे देखते हो गए. Amazon प्राइम हो गया, फिर Netflix हो गया, Disney Hotstar हो गया. So what has happened is Amazon is buying MGM Studios, so the makers of James Bond, and I'm sure आप में से जितनों ने Tom and Jerry देखा है, if you guys like watching Tom and Jerry, so MGM Studios also made Tom and Jerry. ये लायन वाला वीडियो दहाड़ते हुए उसके पहले वीडियो के पहले और बाद में आता था of the Tom and Jerry clips, and also comes before James Bond movies. So Amazon is buying out MGM Studios, which is a Hollywood based studio, for 8.5 almost 8.5 billion dollar, 8.45 to be precise. And with this it will get access to about 4,000 films which have been produced by MGM Studios, and nearly 17,000 hours of TV content, जो कि हम टिपिकली बैठ के प्राइम पे ओरिजिनल कंटेंट और नेटफ्लिक्स पे ओरिजिनल कंटेंट शोज जो देखते रहते हैं. तो दिस इज अ ह्यूज मूव बाय Amazon टू कम्पीट अगेंस्ट नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स पहले बहुत बड़ा था, फिर Amazon का प्राइम वीडियोज आया जो कि Amazon का प्रोडक्ट है, एंड नाउ दे वांट टू इंक्रीज देयर पोर्टफोलियो टू पुल द व्यूअरशिप इन देयर फेवर. एंड विद दिस दे वुड ऑल्सो बी एबल टू हैव अ डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी एंड अ मोर प्रीमियम प्राइसिंग पॉलिसी. अभी इट इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स इन इंडिया, बट माइंड इट, इंडिया के बाहर Amazon प्राइम इतना सस्ता नहीं है जितना सस्ता हमें इंडिया में मिलता है. कम से कम 12 से 15 गुना महंगा होता है पर मंथ आई एम सेइंग. सो यप, इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. इंडिया में अभी भी दे आर ट्राइंग टू गेन फुटहोल्ड, इसलिए सारे प्रोडक्ट इंडिया में इकोनॉमिकल हैं. ऑलराइटी, चलिए आगे चलते हैं. तो एक आर्टिकल और मैंने डिस्कस किया था आपके साथ इन द लास्ट फ्यू वीडियोस, जहां पे कुछ कंट्रीज ने कोविड का जो मेडिसिन थी कोविशील्ड पर से, या जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन था जैनसन, इन पे बैन लगा दिया था बिकॉज इट वाज लीडिंग टू ब्लड क्लॉट्स. इंडिया गवर्नमेंट ने बोला था कि इतना कोई मेजर नहीं है, बहुत ही सिलेक्टिव केसेस आ रहे हैं कोविशील्ड के से ब्लड क्लॉट के, तो नथिंग टू बॉदर अबाउट. यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी इस पे डिबेट हुआ था कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए. फिर काफ़ी कंट्रीज ने कोविशील्ड को बैन कर दिया था और फिर जैनसन को भी बैन कर दिया था. नाउ अ जर्मन साइंटिस्ट, हिज नेम इज रॉल्फ मार्शचेलेक, ही
he did his research on some protein strain and what. Obviously I am not equipped to even explain it properly. So Rolf Marschalek has said that he has found the cure to this problem, or the solution to this problem, and by making a small tweak to the way the vaccine is designed to operate on the human body, या आपके बॉडी पे कैसे वो काम करेगा, उसके प्रोसेस को अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ब्लड क्लॉट्स की फ्रॉम कोविशील्ड एंड जैनसन. So this is the news. I obviously cannot explain this news too much in detail because I am definitely not a virologist or an expert in vaccines. But important things are that I wanted to mention the name of the person who led this research and where the solution has been found. So the name of the professor who did this research, and it happened in Germany. Okay, chale. And in the world of politics, if you guys have been following the civil war in Syria and Libya, so it is another war of independence that US started fighting in Syria, where not really US started, but there was a civil war, and countries have a lot of countries in Middle Eastern region went to civil war. So इसमें क्या हुआ that the Syrian government was led by their president Bashar al-Assad, and there was a breakaway faction which wanted to throw him away. Now he almost is sort of a de facto, he's been in power for 3 terms, 20 साल से he's been in power, and with winning the 4th term he will be again elected to power for 7 more years. So that will put him in power for 28 years. He won the election by 95% votes, which translates into, is he becoming a dictator? You can't say. His father ruled the country for 30 odd years. So yeah, it's a family led thing, so could be, you can call it whatever. For people who are electing him, they like him. For people who are fighting the civil war against the government, obviously they don't like him. So जिससे पूछोगे उसके शब्दों में obviously it differs कि कौन अच्छा और कौन बुरा है, right? कौन डिक्टेटर and who is a good governor or who does good governance varies from the eyes and mouth of people you ask. But yeah, this is what it is. I wanted to the reason I picked up this news article is I wanted you guys to know who is the president of Syria, Bashar al-Assad, a very popular name, especially when it is attributed to all this civil war crisis, and how Syria at one point in time it almost looked like he would suffer the same fate of people like Saddam Hussein or the dictator of Libya, Muammar Gaddafi. But no, he instead actually came out very strong and is now gaining control over the regions in Syria which it lost. So this is the news. चले आगे चलते हैं. तो in the world of sports, and I am sure you guys would have followed it, Naomi Osaka, after her first match, out of the blue she said, I am not coming to the press conference, and she walked out. She quit the French Open tournament, which is also called Roland Garros. So important thing here, I have put it in bold, Roland Garros is also the other name for French Open. That's what the court or the stadium is called, Roland Garros. तो उसका इट्स ऑल्टरनेटली यूज्ड फॉर फ्रेंच ओपन. सो प्लीज रिमेंबर दिस, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन. न्यूज वॉज अबाउट नाओमी ओसाका वॉकिंग अवे बिकॉज शी सेड दैट फॉर 3 years आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीब अजीब से सवाल पूछते हो विच आई डू नॉट वांट टू आंसर. सो व्हाई एम आई फोर्स्ड टू अटेंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस if I do not want to? And as a result she walked away. And now 2 sporting bodies which are associated to the International Lawn Tennis Federation, they have come together and said that okay, we will review this and we will deep dive into the situation here कि ऐसा क्यों हुआ, and we'll look into the mental health of the players, of the athletes. But yeah, that is what it is, that is where it stays. And she also obviously faces regulatory action because जो rules थे उस time के वो तो rules थे that she had to attend the press conference. With time maybe things might change, maybe now athletes might be asked, do you really want to participate in the conference or no? But for now, yes, it was mandatory. Obviously sponsors का पैसा लगा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. So they want their athletes to appear in front of camera, talk to reporters so that they stay in the limelight. But yeah, that's what it is.
एंड हमारे घर पे जो ग्रोसरीज आती हैं बिग बास्केट से, फ़ोन के ऐप पे जो हम ऐप खोल के ग्रोसरी ओवरनाइट ऑर्डर कर देते हैं, रात को मिल्क ऑर्डर किया, अगले दिन दरवाजे के बाहर योर मिल्क एंड ब्रेड इज अवेलेबल फ्रॉम बिग बास्केट. दैट कंपनी हैज़ नाउ बीन एक्वायर्ड बाय टाटा. So for a long time I have been repeatedly talking about this in news में. ये वाला particular article has been coming and going for a long time. Why? पहले टाटा ने बोला we would like to purchase, फिर Big Basket said okay, then it went to Competition Commission of India कि is Tata going to turn it into a monopoly, इतना बड़ा acquisition क्योंकि Big Basket का spread काफ़ी बड़ा है. Then CCI approved of it. फिर टाटा की फंडिंग जानी थी बिग बास्केट पे. तो अब फाइनली टाटा is acquiring, with all these hurdles taken care of, Tata is acquiring 64.3% stake in Big Basket. And which Tata company is buying this stake? Tata Digital. Tata owns a lot of companies, right? Tata is not a company. Tata is the name of the group. Tata is a conglomerate. It is the name of the group. They have a lot of small other companies, Tata Motors, Tata Sons, Tata Steel, Tata this, lot of Tata, right? Infinity Retail, which runs Chroma, Tata Starbucks Alliance, which runs Starbucks Coffee. So they have a lot of entities, TCS, Tata Consultancy Services. So all these companies. So Tata Digital is one of the many companies which is buying stake into Big Basket. And इसके अलावा मैंने obviously आपको पिछले वीडियोस में बताया भी था where Tata Motors has been split into defense, into passenger cars and into commercial vehicles, so that they are saying that we also need to focus independently and better on these businesses. So this is the article about Tata buying out stake in Big Basket through the entity Tata Digital. Alrighty, चलिए आगे चलते हैं. And another news from the world of automobiles, Ministry of Road Transport and Highways, they have come up with a document which they have proposed. It's a draft document where they have proposed कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आप जब गाड़ी खरीदते हो तो आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं काफ़ी सारे, और रजिस्ट्रेशन पे करनी पड़ती है गाड़ी की, जो कि बहुत महंगी होती है वैसे. सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज सेइंग कि गाड़ी की आरसी इशू करने के लिए पैसे ना लिए जाए, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए. और टिपिकली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ऐसे होती है कि दिल्ली एनसीआर में डीजल कार्स को 10 साल ही चला सकते हो, पेट्रोल कार्स को 15 साल चला सकते हो. और गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन और निकाली थी कि अगर आप 15 साल बाद अपनी रजिस्ट्रेशन को 10 साल बाद तो डीजल कार चला ही नहीं सकते एनसीआर में, आपको उसे फेंकनी पड़ेगी. बट अगर आप पेट्रोल कार को रिन्यू करना चाहते हो, इंडिया में कहीं और भी आप उसे रिन्यू करना चाहते हो, तो the fee was increased manifold. काफ़ी एक्सपेंसिव कर दिया था to get a fitness certificate and to get your RC renewed, right? RC is what? RC is the number that you get on your vehicle and the document that you get along with it stating कि आपकी गाड़ी का ये registration certificate है, ये पेपर है जिसपे आपकी गाड़ी का नंबर, मेक, सीटिंग, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, वो सब कुछ लिखा होता है, इंजन कैपेसिटी, इंजन नंबर, चेसी नंबर, राइट? So that's the RC. So for that you pay a lot of price, actually a good percentage of the price of your car. And the renewal fees which I explained जब उसे renew करने जाओगे. तो the ministry is saying कि इसको waive off करते हैं अभी, नहीं तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों खरीदेंगे? कोई तो एडवांटेज होना चाहिए. इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगी भी है पेट्रोल डीजल कार से, आप उसे इम्प्लीमेंट भी, आप उसे चलाना भी चाहते हो लोग जाके खरीदें, तो कोई तो एडवांटेज दो. आप जो एक्स्ट्रा 20-22-30% ड्यूटी लेते हो वो मत लो. तो देन दीज कार्स विल बी एट पार विथ petrol diesel car vehicles and people will naturally go and buy these cars, right? Otherwise they'll always remain expensive and unaffordable of sorts. So this is the proposal, the draft proposal, and now it's again a wait and watch game कि आगे क्या होता है. So yep, this was the article. And another article from the world of electric vehicles is अभी तक जो हमारे सड़क पे पहले, if you look at the evolution of three wheelers, पहले चलते थे, पहले था साइकिल रिक्शा से बने ऑटो रिक्शा थे पेट्रोल एंड डीजल, वेरी पोल्यूटिंग डीजल ऑटो रिक्शाज. फिर उन्हें रोड से हटाया गया. फिर आए इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स विच आर नथिंग बट ई रिक्शाज, राइट? एंड नाउ अ कंपनी इन पुणे, H2E Power Systems, has tied up with a Canadian company, Hydrogen in Motion, and these two companies have collaborated to create
India's first hydrogen powered three-wheeler. So hydrogen fuel cell technology, which is an alternative to electric but clean power. इसका रेसिड्यू और बाई प्रोडक्ट कुछ नहीं है, इट्स ओनली वाटर. सो this Pune based company H2E Power Systems, they have started designing an electric, not electric but hydrogen electric fuel cell three wheeler, and they are being sponsored by a company, by an entity, by a group called Geeta. तो अगर आप सबसे नीचे देखोगे of the text that I have written, so Geeta is a public private partnership between the Technology Development Board, the Department of Science and Tech, Government of India and CII. So these four bodies have come together and formed Geeta, and they are funding this development. और जापान काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है इन यूजिंग फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी. तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको चार्जर्स ही लगाने पड़ेंगे. An alternate to setting up electric chargers in this world and country is that you have hydrogen fuel filling stations which will act like a petrol pump, and you go and fill your vehicle with hydrogen and it will produce energy, and the byproduct would be water, which is again obviously clean to the environment, and you keep driving, so you are not polluting anymore. So good steps being taken, and let's see what is the how it evolves, how it develops, and if it develops well, then obviously we can have an alternate fuel technology also available to us. One side electricity and another fuel cell instead of petrol and diesel as two alternative fuels available. And next news is RBI का एक notification था जिसमें कि RBI the notification is about controlling how often, for how long an auditor is employed by a company. वो कितनी बारी आपको audit कर सकता है, और कितनी एक कोई भी ऑडिट कंपनी कितने दिनों तक ऑडिट कर सकती, कितने ऑडिट के केसेस ले सकती है, कितनी कंपनीज को ऑडिट कर सकती है, राइट. तो इफ आई ओन अ कंपनी, तो मेरा ऑडिटर मुझे कितनी बार ऑडिट करेगा, और मैं अगर एक ऑडिट कंपनी हूं तो मैं कितने क्लाइंट्स को केटर कर सकता हूं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम. और ये रेगुलेशन पूरे वर्ल्ड में होता है. क्यों होता है? बिकॉज काफ़ी फेमस ऑडिट के केसेस हुए थे, लाइक आर्थर एंडरसन एंड एनरॉन, जिसमें दे वर मैसिव ऑडिट फ्रॉड्स वेयर द ऑडिट कंपनी स्टार्टेड हेल्प देयर क्लाइंट्स टू रिपोर्ट फ्रॉडुलेंटली, राइट. तो वो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए पूरी दुनिया में ऑडिट प्रैक्टिसेस बहुत स्ट्रांग हो गए, एंड इट अप्लाई टू इंडिया ऑल्सो. बट इंडिया में ये हुआ है कि आरबीआई ने जो पुराने नॉर्म्स थे उनको और स्ट्रिक्ट कर दिया, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैज हैपेंड इज इट हैज सेड दैट टुडे एन ऑडिटर कैन ओनली बी ऑनबोर्डेड फॉर अ स्पैन ऑफ 3 years. पहले 4 साल था. एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उनको शायद 5 साल या कुछ ऐसे का परमिशन है. और कितने ऑडिट कंपनी कितने क्लाइंट्स को केटर करेगी उसका भी कुछ काउंट है, बट वो आया नहीं है. वो उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है, राइट. स्मॉलर कंपनीज, मिड साइज कंपनीज, लार्जर ऑडिट कंपनीज, तो उसके अगेंस्ट उनको उसके अकॉर्डिंग उनको परमिशन मिली हुई है. बट वट CII हैज सेड इज टू सून, मत इम्प्लीमेंट करो. एक तो बिकॉज फाइनेंशियल कंपनीज इतनी जल्दी ये कर ही नहीं पाएंगी, बिकॉज टाइम स्पैन बहुत ही छोटा दिया है आपने, तो 2 साल के लिए डेफर करो. और हाँ, जो NBFCs हैं उनके लिए सेकेंड हाफ में साल के स्टार्ट करो, अभी मत स्टार्ट करो इमीडिएटली. ये जो अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ है इसमें इम्पॉसिबल है. तो इस फर्स्ट क्वार्टर में, जो फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें हम इसको नहीं मीट कर पाएंगे. सो दिस इज व्हाट CII हैज रिक्वेस्टेड RBI टू डू. And what is the full form of CII? Like too many abbreviations that we have been discussing, it is Confederation of Indian Industry, and all of you guys must know these abbreviations, right? Entrance में आ गया तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए. चलिए, and another, यार मेरे पॉप अप बजते क्यों रहते हैं? जब भी मैं इन्हें बंद भी कर देता हूँ तो भी स्क्रीन पे देखिए कीप ऑन जंपिंग. And another important thing that has happened about the development of sorry, I'll just go back. So important thing that happened was that DDA has submitted the master plan for Delhi, master plan 2020 2041. अभी 2021 चल रहा है,
मास्टर प्लान। तो ये ख़त्म हो गया ईयर, इसके बाद अब अगले 20 साल का मास्टर प्लान। तो अगले 20 साल में दिल्ली में क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, दिल्ली में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आएगी। सो विद दिस द मास्टर प्लान टिल 2041 ऑफ DDA स्पीक्स मोर अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ताकि आप ज़्यादा मार्केट सेटअप कर सको, ऑफिस सेटअप कर सको, लोग अर्न कर सकें, एंड मेक द सिटी सेफर फॉर पीपल, ग्रीनर फॉर पीपल, मोर सस्टेनेबल, की चीज़ें वेस्ट ना हो, एनर्जी वेस्ट ना हो। सो दीज नीड टू बी प्लान्ड। आप आज प्लान करोगे कोई ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, तब वो 5 साल 7 साल 10 साल बाद बनके तैयार होगा, फिर लोग आएंगे, फिर वहाँ जॉब करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। सो जस्ट कैंट मेक इट ओवरनाइट, राइट। आप इलीगल कंस्ट्रक्शन करके नहीं बोल सकते चलो कल से यहाँ पे ऑफिस बनाते हैं, या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दी चलो यहाँ पे दुकान खोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ प्रॉपर मास्टर प्लान दैट हैपन्स फॉर अ सिटी। कितनी मेट्रो चाहिए, कितने बसेस चाहिए, बसेस चाहिए, बसेस खरीद लेंगे तो उन्हें पार्क कहाँ करेंगे, राइट। एंड कंस्ट्रक्शन धड़ल्ले से नहीं कर सकते कि पोल्यूशन ही पोल्यूशन कर दिया। कितने वाटर रिजर्व्स हैं हमारे पास, है कितनी वाटर बॉडीज क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि इतने लोगों की सिटी में इतनी पॉपुलेशन ग्रो होगी कि उनको पीने का पानी मिल सके, दूसरे यूजर्स के लिए पानी मिल सके। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द मास्टर प्लान. So how the city will grow and what the city will physically look like. So DDA has submitted the 2041 master plan to the center for approval, which has already been approved by the Lieutenant Governor of Delhi, Anil Baijal, and I have repeatedly told you multiple times that now the LG of Delhi is the de facto government for NCT of Delhi, right? So yep, that's it. That was the update for the last week of May for you guys. Sorry, video was a little late, but yep, I tried to summarize everything. Like I said, no COVID, no political nonsense included in the videos, only pure stuff that can come from the entrance standpoint. And if you like this, liked it, please do press the like button, because that is my only motivation. And I encourage you to keep reviewing your own current affairs topics, keep posting them in the comments. And if you have any questions, please come back. I'll be happy to answer them. I'll see you next week with the next lot of videos. Until then, bye.